हेलो फ्रेंड। स्टैंडर्ड 11 पी सब्जेक्ट में आज चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो उसको आप लोग जानते हैं कि वातावरणीय स्वास्थ्य इन्वायरमेंटल हेल्थ किसको कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर ऑन ऑल साइड अराउंड अस in which are contained air and water is called environment. Air and water, these components are essential for human life. On the world, organisms like many animal, birds, insect, vegetation, over and above man live in it. The particles of following or still water from mountain, rivers, it's are also a part of this environment. The industrial factor is chemical substances, smoke, noise, and advantages are and disadvantages of these are also part of this environment. बहुत सारे कंपोनेंट्स आप लोग जानते हैं कि रासायनिक पदार्थ है, स्मोक है, नॉइस है, वो हमारे लिए कई बार लाभकारक होते हैं, कई बार इनके गैर लाभ भी होते हैं। तो सबसे पहले इनमें आता है वाटर। वी ऑल नो that water is obtained from cloud in the form of rain. Springs and rivers flowing down from mountain and are also formed by rainwater. Water formed by melting of ice on high snow covered mountain. High snow covered mountain also flows in same rivers. Over and above the river, raining water is also storage in place of water like pond, lake. Underground water is storage in well, step wells, large ocean surrounding the vast portion of earth. Give an idea of quantity of water contained in the environment. Water on the surface form cloud from water vapor through evaporation. It again comes down in the form of rain. आप लोगों ने यहाँ समझा होगा कि मूल स्रोत आपका रेन है और वही पानी बहुत सारा जो धरती पर है वो इसका वेपर होकर वो क्लाउड बनते हैं, फिर दोबारा वो धरती पर पानी के रूप में आते हैं और इनमें से नदी, सरोवर, कुएं में पानी आता है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो आप लोग जानते हैं कि वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन is essential for health to get pure water. Rainwater is mostly the top in purity. Sometimes when polluted gases from air mix with rainwater can be polluted. But we men polluted the water more. Industrial garbage enter into the water and water becomes polluted. This polluted water passes in river, lakes, the lakes which are situated on the earth. People live in this area, villages, cities, corporation, which are situated on these rivers, all are affected of many diseases. Thus water pollution is increased due to mixed extraction, industrial solid and liquid rubbish with water. This pollution should be stopped for existence of all living creatures on the earth. बहुत सारे
प्रदूषण के जरिए पानी को हम अशुद्ध बनाते हैं, जिनमें सबसे पहले मानव ही इसके लिए जिम्मेदार है। इंडस्ट्रियल एरिया और इनमें से निकलने वाले जो ओ, ओ, पानी है, वो पानी वो रिवर में, पॉन्ड में या तो ज़मीन में जाता है, और बहुत सारा मानव सर्जित जो मल मूत्र है, औद्योगिक वेस्टेज है, वो पानी में डाल जाते हैं और इनसे पानी का पॉल्यूशन बढ़ता है। फैक्टर ऑफ पॉल्यूटिंग वाटर, आप लोग देखते हैं कि लास्ट 30 ईयर in fear was never before of water being polluted due to industrial garbage has increased over the last 30 years. Poisonous chemicals, radioactive substances, offensive small spreading substances mixed with water, so it becomes polluted, and it is not potable water. But where there is non-availability of potable water, people take such polluted water in order to sustain life anyhow. As a result, they gain many diseases and it may result in death also. Due to etc. for man and other animal mixed with water, the pollution spread out. Drinking such water, various bacteria and viruses enter the human body. Healthy man then becomes a victim of disease like cholera, typhoid, jaundice, diarrhea. If there is no suitable treatment of the diseases, it may result in death also. It is seen where there is non-availability of potable water in industrial area, cities, corporation area, there is high rate of polluted water disease and death rate is also high. जहाँ पर प्रदूषित पानी होता है, वैसे पानी को पीने से आजकल जो डिजीज़, वाटर डिजीज़ और डेथ रेशियो बढ़ गया है। इसके बाद आता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो वी हैव सीन that the polluted water causes many disease. So polluted water should not be taken, this understanding is true but incomplete. Water which appear pure also can be polluted. The pollution of original sources of water is responsible. Impurity should be not mix in water during transit from its original sources. Hence it needs to be taken care of. It is very necessary to that the original sources, river, well, lake, pond, connecting water pipes, drain, pots, tanks, pits may be perfectly protected in order that pure water from the original sources may reach the source of it is used. बहुत सारे जो डिसीज़ होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को बाहर से देखे तो पानी शुद्ध दिखता है, लेकिन अंदर कितने वायरस है, कितने बैक्टीरिया है, वो देख नहीं सकते हैं। और ऐसा पानी का उपयोग करने से हम लोग बहुत सारे रोग हमको हो सकते हैं। और वही पानी जब अपना यूज़ करते हैं वो सोर्सेज तक, यानी कि कुएँ, तालाब, सरोवर, रिवर में से अपने घर के अंदर जो पानी का पात्र है, मटका है, वहीं तक आ जाता है, तब तक इनकी जो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है वो चलती रहती है। लेकिन कई बार अब हम अवेयर नहीं रहते हैं, इनसे ही बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। मेथड ऑफ मेंटेनिंग प्योर वाटर, तो it said water is life. Drinking water is essential for all living creatures on earth, including man to sustain their life. If there is a polluted drinking water, then they become victim
to many diseases and their life ends early. Hence, the following details should be borne in mind in order that water may not get polluted and it becomes pure. हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए पानी ज़रूरी है, लेकिन वो पानी प्रदूषित न हो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स अस्तित्व में आई हुई है, वो भी ध्यान में लेने की ज़रूरत है। तो इनमें आता है सबसे पहले इंडिविजुअल क्लीनलीनेस। तो vessels which are used in the drinking water at our home, pots, metal pots, hand lifter for taking water, drinking glasses should be washed daily. अपने यूज़ में आने वाले जो पानी भरने के पात्र होते हैं, मटका हो, डोल हो, पानी निकलने का पात्र हो, वो हर रोज़ साफ करना ज़रूरी है। इसके बाद पानी को कपड़े से या प्लास्टिक की गरनी से उसको गाड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि डर्ट हो, सॉइल हो, कैन भी फिल्टर होना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारे हैंड्स, बॉडी, नेल्स, डर्ट, हेयर and gets polluted, so should be taken after the passing stool, and urine hands should be washed with soap. The place for accumulation of water closets should be kept clean. आपके हाथ क्लीनलीनेस के बाद जो अर्ली मॉर्निंग क्लीनलीनेस जो करते हैं उसके बाद धोना जरूरी है। हर बार जब भी यूरिनल जाते हैं तो हाथ धोना ज़रूरी होता है। इसके बाद जहाँ पर पात्र रखते हैं, पानी का मटका रखते हैं, उसके आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, बार बार साफ़ कर देना है, जिससे मच्छर के उपद्रव भी कम होता है, पानी शुद्ध रहता है। और पानी पीने के जितने भी पात्र हो, ग्लास हो, हर एक के लिए अलग अलग होना चाहिए। और हर बार पानी पीने के बाद वो पात्र साफ़ होना चाहिए, ग्लास साफ़ होना चाहिए। और हो सके तो आप पानी निकलने का जो पात्र होता है उससे ही, जो हैंड लिफ्टर उसको डोया भी बोलते हैं, उससे ही पानी निकाले। अभी तो नल वाले मटके आ गए तो इसका उपयोग कम हो गया है, लेकिन पानी जब पीते तो अपने मुंह पे ग्लास मत लगाओ, जितना हो सके तो ऊपर से ही पानी पियो और फिर वो पानी साफ़ कर दो। क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो नाक में से भी उसी वक्त सांस निकलती है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड या बैक्टीरिया, वायरस उसमें चले जाते हैं। तो दोबारा दूसरा व्यक्ति वही ग्लास यूज करता है तो उससे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए हर बार ये पानी पीते वक्त उसका ध्यान रखना है। और ये आदत बचपन से ही डालनी है, क्योंकि जब वो आपके बिहेवियर में, अपने मैनर्स में आ जाएगा तो ये इंडिविजुअल क्लीनलीनेस में एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कई बार क्या होता है कि हमको जानकारी होने के बावजूद भी हम बेदरकार रहते हैं। ये हम पानी पीने के लिए मटके का जो ढक्कन होते हैं उसको खोल देते हैं, फिर बंद करने का भूल जाते हैं, और झाड़ू लगाते वक्त जो डस्ट उड़ता है, पार्टिकल्स जो उड़ते हैं वो उसमें चले जाते हैं और पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो वैसे वेसल्स है उसको कवर करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि वेल जो होते हैं, वेल को खुला रख देते हैं और उसमें कई पत्ते गिरते हैं, पानी, मिट्टी पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनमें चले जाते हैं, रबिश चला जाता है तो वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो उसको भी अशुद्धि से बचाने के लिए उस पर कुएँ के पर भी ढक्कन बनाना ज़रूरी है, जिससे ये पानी पॉल्यूटेड ना हो। इसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन। तो ऑल पर्सन इन द फैमिली especially children should be imparted such as education so that they may be aware of purity of water. Elders should behave in such a way that good habits develop in child. तो बड़े लोग जो होते हैं वो गुड हैबिट डालेंगे
तो बच्चों में अपने आप वो उसके बारे में जानकारी आएगी, उसको समझाना चाहिए बच्चों को। स्कूल में आप लोग देखते हैं तो स्कूल में भी हेल्थ एजुकेशन के दौरान वो टॉपिक्स को समझाना ज़रूरी होता है। बहुत सारे जो वो पानी की टंकी के पास नल रखे हुए होते हैं तो उसमें हाथ साफ करते हैं, कई बार मुंह में पानी डाल के उसमें थूकते हैं, तो उसी जगह से वो लोग पानी पीते हैं तो वो पानी पॉल्यूटेड होता है, वायरस वाला हो जाता है और आपको नहीं तो दूसरे को इसका इन्फेक्शन लग सकता है। तो पानी की जगह जो है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। आसपास पानी का जो पात्र है वो भी साफ रखना ज़रूरी है, वो आदत डालनी ज़रूरी है। इसके बाद आता है मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, एसेंशियल फॉर हेल्थ दैट द पोर्टेबल वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम insect. There is water purification plant launched in big cities for purifying water. Purified water is supplied to the citizen. Filtration of water, decantation of application of insecticide like chlorine as well as mix of alum are the main system for villages and small cities. Sometimes pipes which supply water are split or break. Polluted water mixed with pure water and becomes impure. So it is necessary the pipe should be in a good condition. Old pipes should be replaced and following method are used with the purpose of using only pure water for drinking. तो पानी को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स भी बताए हुए हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। वाटर वर्कर्स में भी शुद्ध होके आता है पानी। ये फटकड़ी जो होती है उससे भी होता है, और कई बार पाइप जो अंडरग्राउंड पाइप होती है उसके साथ ड्रेनेज का पाइप पानी में मिक्स हो जाता है और अशुद्ध होता है। तो उनको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर कई मेथड बताए हुए हैं। तो सबसे पहले है डिकेंटेशन। पानी जब आता है तो उस पानी को हम लेते हैं तो पानी को सबसे पहले ठहरने दें, यानी कि उसके ऊपर जो मिट्टी है, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, कई बार कचरा दिखाई देता है, तो थोड़ी देर पानी आप रखते हैं तो जो इम्प्योरिटी लाइक सॉइल, डस्ट पार्टिकल्स एंड डर्ट, वाटर सेटल डाउन एट द बॉटम। नीचे पानी का कचरा ठहर जाएगा, ऊपर जो पार्टिकल्स है वो भी कई बार तैरते रहते हैं। तो वो पानी को धीरे से आप क्लॉथ से या प्लास्टिक की गरनी से उसको साफ करके यूज कर सकते हैं। तो ये एक पद्धति है कि आप उसको पानी को लेने के बाद उसको थोड़ी देर तक रहने दें ताकि वो पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बॉटम में चले जाए और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है उसको हम लोग प्योरीफाई करके यूज कर सकते हैं। सेकंड है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो हम लोग जानते हैं कि ये पानी को फ़िल्टर करने के लिए हम उसको कई बार कपड़े का यूज़ करते हैं। तो लाइक द ग्रास, लीव्स, रबिश, लाइट रबिश जो होता है वो सब फ्लोट ऑन वाटर। तो रबिश फ्लोटिंग ऑन सरफेस कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। क्लीन टाइप्स ऑफ क्लोथ, डेली वॉश और प्लास्टिक नेट शुड बी यूज फॉर दिस पर्पज़। तो कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ऐसा माना जाता है। थर्ड, वाटर प्योरिफिकेशन बाय मिक्सिंग एलम। तो इसमें कई बार क्या होता है कि रेनी सीजन में हम लोगों को प्योर वाटर मिलता नहीं है, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग कई बार उसमें जो फटकड़ी आता है वो मिलाते हैं, और जिसकी वजह से कई बार वो जो कचरा होता है उसका एक लेयर बन जाता है और उस लेयर को
वो हटा के हम लोग वो पानी का यूज कर सकते हैं। तो ख़ास करके रेनी सीजन में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो फोर्थ पर है फिल्ट्रेशन बेड ऑफ अर्थन सब्सटेंसेस। तो कई बार क्या होता है कि पानी को एक तीन मटके लिए जाते हैं। सबसे ऊपर एक पानी का मटका भर के रखा जाता है, बीच वाला जो मटका होता है उसमें प्योर सैंड भर दी जाती है। तो ऊपर से थोड़ा पानी टपकता है बीच वाले मटके में जिसमें रेत भरी हुई है, सैंड भरी हुई है। और इसके नीचे एक मटका आता है जिसमें छोटे छोटे पत्थर, ग्रिंट है, कपची है, ऐसी भरी हुई है, पूरा मटका होता है। तो ऊपर वाले मटके में से सैंड वाले में पानी जाएगा, सैंड वाले में से वो पत्थर है, ग्रिंट है, उनमें जाएगा, और इनके नीचे एक पात्र रखा जाता है जिनमें वो पानी आएगा। वो पानी शुद्ध होके आएगा। तो फिल्ट्रेशन बेड जिसको कहते हैं कि अर्थन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बीच में रुक जाते हैं और पानी शुद्ध होके नीचे के वेसल्स में आता है, और इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है डिसइंफेक्टेशन जो होते हैं कि कई बार हम लोग उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला देते हैं, जो एक बाल्टी के अंदर हम लोग भर के उसको टंकी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वेल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, क्लोरीन मिलाया जाता है। तो आप 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं तो 1000 लीटर पानी शुद्ध हो जाता है। तो इसका कई बार क्या होता है कि वेट करने का चांसेस ना हो तो मैच बॉक्स जो आता है, माचिस बॉक्स के अंदर जो जगह होती है उतने में ब्लीचिंग पाउडर रख दो तो 1000 लीटर पानी के लिए इतना इनफ हो जाता है। क्लोरीन टैबलेट्स भी आती है, 1 ग्राम की आती है, उसका भी आप पानी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कॉरपोरेशन की ऑफिस पर अवेलेबिलिटी इसकी होती है, तो पानी शुद्ध करने के लिए आप वहीं से भी फ्री ले सकते हैं। तो कई बार ऐसे भी पानी को शुद्ध करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फिर 6th मेथड है बॉइलिंग। सबसे बेस्ट माना जाता है कि बॉईल किया हुआ पानी प्योर माना जाता है, इसलिए ये बॉइलिंग सिस्टम इज बेस्ट मेथड। और ये कॉस्टली भी है क्योंकि इसमें ज़्यादा गैस का उपयोग करके हम लोग उसको जलाते हैं, इसका बॉयल होता है और वही पाइप से के जरिए फ़िल्टर किया हुआ पानी फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं। 7 है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय फिल्टर एंड वायोलेट रे। आजकल के ज़माने में हम लोग जो आरओ का यूज़ करते हैं, इसके बाद दूसरी कई बार देखा है कि एक्वागार्ड का यूज़ करते हैं, जिनके अंदर से ये वायोलेट रेज पास होता है और पानी शुद्ध होके बाहर आता है। तो वो पानी भी पीने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और 8 है ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इजराइल के अंदर वो टेक्नोलॉजी आ गई है और बाकी सब कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ के अंदर तो इसका उपयोग किया ही जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर भी आ गई है कि समुद्र का जो पानी होता है, सी वाटर, जो उसको प्योर करने के लिए कई फैक्ट्रीज उनके पास लगी हुई होती है, वो पानी शुद्ध करके उसको ड्रिंकेबल बनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर इतना सीखा कि इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, वाटर, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, फैक्टर पॉल्यूटिंग वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग प्योर वाटर, इंडिविजुअल क्लीनलीनेस, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, हेल्थ एजुकेशन, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जिनमें हम लोगों ने डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर प्योरिफिकेशन बाय मिक्सिंग वॉल्यूम, filtration bed of earthen substances, disinfection, boiling, purification of water by filter and violet ray, and drinking water from sea setup. नेक्स्ट क्लास में हम लोग गार्बेज हजार्ड्स के बारे में शुरू करेंगे। थैंक यू।